Exercise 6.2. Example number 1. This exercise is based on corresponding angles, alternate interior angles, co-interior angles. If you take example number 1, PQ is parallel to RX, RS, and angle MSQ is 135 degree, and MYR is 40 degree. Find the angle XMY. This is the angle that you have to find out. यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक कंस्ट्रक्शंस करनी है. ड्रॉ ए लाइन थ्रू M एंड पैरेलल टू RS. अगर जो आप एक लाइन इसके करेंगे तो इस लाइन का नाम आप कोई भी ले सकते हैं. दिस इज द रेड लाइन. इस लाइन को आप AB कह सकते हैं. ड्रॉ ए लाइन AB थ्रू M पैरेलल टू RS एंड PQ. दोनों के ही पैरेलल होगी बिकॉज PQ पैरेलल टू RS. नाउ PQ पैरेलल टू AB मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शंस कर दी. MX इज नाउ RS कह देते हैं पहले. इज पैरेलल टू AB then angle X is equal to 40 degree. Alternate interior angles, क्योंकि MY जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी. MY इज द ट्रांसवर्सल लाइन. तो एंगल X जो है वो 45 डिग्री आ जाएगा और इसको आप एंगल Y कह दो. अगेन AB is parallel to PQ. This implies angle Y plus 135 degree is equal to 180 degree. Co-interior angles. So this implies angle Y is equal to 45 degree. Now angle XMY is nothing but angle X plus angle Y. That is 40 degree plus 45 degree. Answer is 85 degree. तो इस क्वेश्चन में एक ही पॉइंट है. ओनली यू हैव टू रिमेंबर द कंस्ट्रक्शंस. अगर जब आप कंस्ट्रक्शंस ध्यान में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि AB के थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. AB इज पैरेलल टू RS है और AB ही पैरेलल टू PQ भी है. तो एंगल X इज 40 डिग्री एंड एंगल Y इज 45 डिग्री. तो टोटल एंगल जो आपका ऐड करके आएगा this becomes 85 degree. So this is your example number 1. And example number 2 I have already covered in theorems. Example number 3 let me take.
Example number 3, AB parallel to CD and CD parallel to EF. Also EA is perpendicular to AB. Angle BEF is 55 degree. Find angles X, Y and Z. Now first CD parallel to EF and ED is transversal. This implies angle Y plus 55 degree is equal to 180 degree. Co-interior angles, जिसको मैंने कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी कहा. तो दिस implies angle Y is equal to 180 minus 55 degree comes to be 125 degree. So this is your one case. Similarly, AB parallel to CD, so this implies angle X is equal to angle Y, corresponding angles. दोनों लाइनों के ऊपर साइड पे हैं. This implies angle X is also 125 degree. Now EA is perpendicular to AB. This angle is 90 degree. This is 90. This is also 90 degree. Again, CD parallel to EF and C into E is transversal. मैंने इसको ट्रांसवर्सल मान लिया. तो एंगल Z प्लस 55 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स. तो Z will be equal to 180 minus 145 degree comes to be 35 degree. So this is your answer. Z will be 135. One answer is this, Z is 35. Another is X is 125 and this angle Y is also 125. आपको एग्जामिनेशन में इतना ही लिखना है कि आप कौन सी पैरेलल लाइन ले रहे हैं और कौन सी ट्रांसवर्सल लेने हैं. परपेंडिकुलर का यूज कर दिए. ये एंगल 90 है तो दिस प्लस दिस सम शुड बी 180. को इंटीरियर एंगल्स. आप कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स भी लिख सकते हैं. सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 3 फ्रॉम योर NCERT बुक्स. नाउ लेट मी टेक योर क्वेश्चन नंबर 1. Exercise 6.2. This is the statement. Find the value of X and Y if AB parallel to CD.
गिवन में आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी, टू फाइंड एक्स एंड वाई। देखिए एंगल वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री वर्टिकली opposite angles, and angle x is equal to angle y alternate interior angles। ये थ्योरम आपने पढ़ी थी, लाइनें पैरेलल हैं तो ये इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज x is equal to y is equal to 130 डिग्री। दिस इज योर आंसर। आप यहां से भी कह सकते थे x प्लस 50, दूसरा मेथड इज 180 लीनियर पेयर, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 130 डिग्री। अगेन यू कैन से दिस इज 130। इनमें मेथडों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, आप किसी भी तरीके से ये सम कर सकते हैं। So this is question number 1 I have taken. This is covered. Vertically opposite angle से क्या, angle x is equal to y। बहुत simple questions हैं। I am removing this also. Now let me take question number 2. Question number 2 में given मैंने लिखा हुआ है AB पैरेलल टू CD और CD पैरेलल टू EF है। इसका मतलब CD पैरेलल टू EF होगा। देखिए सोल्यूशन हम यहाँ से ले सकते हैं कि सिंस AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, दिस implies AB is parallel to EF। एंगल y इज इक्वल टू z की रेशियो 3:7 है, तो दिस implies एंगल y इज इक्वल टू 3K and angle Z is equal to 7K। आपने एंगल X निकालना है। सबसे पहले आप इसको एक एंगल लेट कर लो, इसको एंगल 1 ले लेते हैं। आप लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल Y vertically opposite angles। एंगल 1 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। बिकॉज यहां सारा लिख दिया करो, CD पैरेलल टू EF, CD पैरेलल टू EF। This implies angle Y plus angle Z is equal to 180 डिग्री। तो Y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3K 7K, तो 3K प्लस 7K इज 180 डिग्री, 10K इज इक्वल टू 180 डिग्री, K इज इक्वल टू 18 डिग्री। Since AB is parallel to CD, तो this implies x plus y is 180 degree, angle x plus y 180 degree। Same reason, co-interior angles। आपको एंगल x निकालना है, यहाँ से एंगल y कितना आ जाएगा, 3 इंटू K, K का मतलब 18 डिग्री, 54 डिग्री। तो x प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 54, आंसर इज 126 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चंस कोई मुश्किल नहीं है, मैंने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड को इंटीरियर एंगल्स यूज करें, क्योंकि जब रेशो के क्वेश्चंस होते हैं, आप कोई भी ज्योमेट्री का पोर्शंस करें
लगभग वो इसी तरीके से ही कवर्ड होते हैं। तो दिस इज़ द मेन वर्किंग, जो आप सम्स को इस तरीके से यहाँ मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। लेट मी टेक नाउ क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी है। एंगल जी ई डी इज गिवन टू बी 126 डिग्री। देखो जी ई डी ये वाला एंगल जो है वो आपके पास 126 डिग्री है। फाइंड एंगल ए जी एंड ई। मान लेते हैं आप इस एंगल को x ले लेते हैं, ए जी ई को आप x ले सकते हैं, जी ई एंड f इस एंगल को आप y कह सकते हैं, f जी एंड ई इस एंगल को आप z कह सकते हैं। थोड़ी वर्किंग इजी हो जाएगी। ठीक है, ये छोटा सा एंगल जो मैंने लिखा है ये y मैं यहां लिख रहा हूं, ये एंगल एक्चुअली z है। देखिए सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। एंगल आपको जी ई एंड डी 126 है। मेरे हिसाब से y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री आ गया। ये y है और ये 190 है, तो टोटल 126 है। तो एंगल y जो है 126 माइनस 90 कम्स टू बी 36 डिग्री। नाउ ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, एंड जी ऑफ ई इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के ऊपर ध्यान दिया करो, सारे एंगल्स यहीं से मूव करते हैं। दिस इंप्लाइज एंगल x मस्ट बी इक्वल टू एंगल जी ई एंड डी। तो एंगल x किसके इक्वल आ जाएगा? 126 डिग्री के। ठीक है, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये बात क्लियर है कि एंगल x प्लस एंगल z इज 180 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्या है? लीनियर पेयर। तो एंगल z किसके इक्वल आ गया? 180 माइनस 126 दैट इज 54 डिग्री। तो मेरे हिसाब से आपके तीनों एंगल्स के आंसर आ गए। एंगल x क्लियर हो गया 126 डिग्री, एंगल y क्लियर हो गया 36 डिग्री, और एंगल z क्लियर हो गया 54 डिग्री। थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान से मैनिपुलेट करेंगे तो सम इजी है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। मैं जान के क्वेश्चनों को एक्स वाई जेड में लेट कर लेता हूं ताकि सम्स करने थोड़े इजी रहें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो आई एम रिमूविंग द क्वेश्चन नंबर 3 आल्सो। क्वेश्चन नंबर 4,
पी क्यू पैरेलल टू एस टी है, ठीक है। एंगल दिया हुआ 110 पी क्यू आर और आर एस टी 130 दिया हुआ है। आपने एंगल क्यू आर एस निकालना। कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, टेक ए लाइन थ्रू आर पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। तो हिंट क्या लेंगे? ड्रॉ ए लाइन ए बी, ड्रॉ ए लाइन ए बी पैरेलल टू एस टी। तो अगर जो ए बी पैरेलल टू एस टी है एंड एस टी जो है वो पैरेलल टू पी क्यू है, तो दिस इंप्लाइज ए बी इज आल्सो पैरेलल टू पी क्यू। तो ये तीनों के कॉन्सेप्ट आ गए। अब आप इस एंगल को x कह दो, y कह दो, इस एंगल को x कह दो और इस एंगल को z कह दो। एस टी पैरेलल टू ए बी, दिस इंप्लाइज एंगल x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। This implies angle x is equal to 50 degree. PQ parallel to AB implies angle z plus 110 degree is equal to 180, co-interior angles. इसमें तो आपका क्यू आर जो है वो ट्रांसवर्सल होगा, ऊपर वाले में एस आर एस इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। नाउ एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर। This implies angle y is equal to 180 minus 70 degree plus 50 degree comes to be 60 degree. This implies angle QRS is equal to 60 degree. सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन ध्यान में रखनी है, मैंने को इंटीरियर एंगल की हेल्प ली है, ठीक है। मुझे को इंटीरियर एंगल इजी लगा, आप ऑल्टरनेट भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा के कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होता, ठीक है। मैंने दोनों में ही को इंटीरियर्स लगाए हैं। आप चीज़ों को समझ के करेंगे तो मेथड आपके ऑटोमेटिकली चेंज भी होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी पैरेलल टू सी डी है और बाकी के एंगल्स आपको दिए हुए हैं। ए पी क्यू 50 डिग्री, पी आर डी 127 डिग्री है। आपको एक्स और वाई निकालना है। तो आप यहाँ सोल्यूशन में तो यही लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लिखने से आपको आइडिया लिख सकते हैं, इट मीन एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। एंड
if PR is transversal, then angle Y plus 50 degree is equal to 127 degree. Alternate angles. This implies angle Y is equal to 127 minus 50. 77 degree. तो these are the answers. Find x and y था. x मैंने पहले निकाल दिया और y बाद में. बस ट्रांसवर्सल के ऊपर ध्यान देना कि वो पैरेलल लाइनों से मीट करनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6. PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. वो तो मैंने लिख ही दिया. An incident ray strikes the mirror PQ at B and reflected ray strike the mirror at C, again reflected to D. आपने यहां से ये लेना है कि आप यहां से बेसिकली जो वर्किंग होती है वो मिरर्स के क्वेश्चन में हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जिनको हम नॉर्मल कहते हैं. ये नॉर्मल है बी डैश और ये नॉर्मल है सी डैश. तो हम कहेंगे सॉल्यूशंस में बी डैश परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी डैश परपेंडिकुलर टू आर एस. एक कॉन्सेप्ट होता था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. REFLECTION. एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये होता है जो इंसिडेंट रे बना रही है. कहने का मतलब है ये एंगल इस एंगल के साथ इक्वल है जो नॉर्मल के साथ बनता है, और ऐसे ही ये रिफ्लेक्टेड एंगल है और ये फिर इंसिडेंट रे बन गई है. तो ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं. क्लियर हो गया. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस. आप यहां से लिखेंगे सिंस बी डैश इज पैरेलल टू सी एंड सी डैश बिकॉज पी क्यू पैरेलल टू आर एस. रीजन ये है. तो एंगल 1 इज एंड बी सी कह सकते हैं हम इज ट्रांसवर्सल. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और हमें यह भी पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. दिस implies twice of angle 1 is equal to twice of angle 2. This implies angle 1 plus angle 1 is equal to angle 2 plus angle 2.
एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4. दिस इंप्लाइज एंगल ABC equal to angle BCND, and BC is transverse. So this implies AB is equal to, AB is parallel to CD, converse of alternate इंटीरियर एंगल्स. अगर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइनें भी पैरेलल होंगी. देखिए यहाँ पे मैंने ट्वाइस जान के कर दिया. इसको एंगल, एक को एंगल 1 ही रख दिया, एक एंगल 1 की जगह एंगल 3 दे दिया. एक को एंगल 2 रख दिया, एक एंगल 2 की जगह हमने एंगल 4 ले लिया. तो 1 + 3 एंगल ABC बन गया, ध्यान से देख लो. और ये BCD बन गए. BC ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब हो गया ऑल्टरनेट्स है इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अगर जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, इससे ये प्रूव हो गया कि AB इज पैरेलल टू CD. So this is all about your exercise 6.2 with examples.